the value of xj. Yes, when L. Now, what is L? L is the channel length. Okay, when channel length is comparable with junction depth, that is xj. Okay, when channel length is comparable with junction depth xj, at that time we will say that this device is a short channel device. Okay, now here, ओके सो नेक्स्ट उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, अभी शॉर्ट चैनल में मेन जो दो प्रॉब्लम होगा, ओके, और यू कैन से दो मेन मेन टू इफेक्ट्स व्हिच वी कैन सी, दैट इज फर्स्ट वन इज देयर विल बी लिमिटेशंस व्हिच आर इम्पोज्ड ऑन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, चैनल में जो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो रहे हैं, ओके, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो वहां पे लिमिटेशंस आएंगे बिकॉज ऑफ द शॉर्ट चैनल. एंड सेकंड क्या होगा, देयर विल बी मॉडिफिकेशन ऑफ थ्रेशोल्ड वोल्टेज ड्यू टू शॉर्टनिंग. ओके, मतलब दूसरा क्या रहेगा इफेक्ट, थ्रेशोल्ड वोल्टेज का मॉडिफिकेशन होगा. थ्रेशोल्ड वोल्टेज मतलब वीटी जो हम लोग बोल रहे हो, okay? At VT what happens, E MOSFET turns on. Before VT it is off. When VGS is less than VT it is off. VGS, when VGS is greater than VT, then only it is on. Okay, so यहाँ पे दो जो मेन इश्यूज होंगे वो अभी हम लोग ने, हैव यू रिटन दीज 2 points, जस्ट चेक. फर्स्ट इज लिमिटेशंस ऑन Yeah, इलेक्ट्रॉन ma'am. ड्रिफ्ट कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, यू हैव रिटन. जिसने नहीं लिखा रहेगा प्लीज राइट इट डाउन, ओके, और नोट इट डाउन. नेक्स्ट, सो वी स्टार्टेड विद द फर्स्ट इफेक्ट. अभी हम लोग अलग अलग इफेक्ट्स देखने वाले हैं. सो सबसे पहला जो इफेक्ट है दैट इज कॉल्ड एज द चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन. ओके, कल मैंने तुम लोग को ये एक्सप्लेन किया था. ओके, आई हैव शोन यू द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज कॉल्ड एज द ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉसफेट. ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज what happens with the drain current when MOSFETs enter into saturation region. ठीक है, saturation region में if MOSFET is operating in a saturation region and if you are increasing VDS, okay, increase कर रहे हो, saturation region में है already वो, and again if you are increasing VDS, then what will happen? The drain current will saturate. ड्रेन करंट विल सैचुरेट, राइट राइट, इट विल सैचुरेट, मतलब अभी उसके आगे ड्रेन करंट नहीं बढ़ेगा. सो कांस्टेंट आइडियली, होगा. yes, constant रहेगा. So ideal, what is the ideal nature, ideal characteristics is what, if you, even if you increase VDS in the small Parallel saturation to region, x-axis. current should remain what, Parallel to x-axis. parallel to x-axis, that is right. Current should remain constant. Okay, even if you vary VDS, even if you vary VDS, current should remain constant. Okay, so that is the ideal characteristics. But practically क्या हो रहा है, okay, practically क्या हो रहा है, whenever you are increasing VDS, okay, in a saturation region, what happens with the channel length, कल मैंने ये बताया था तुम लोग को, what happens with the channel length, It shifts towards the left. pinch of point रहता है, पता है, एक pinch of point रहता है, right? That pinch of point will start shifting towards left, towards drain region, sorry, towards source region. ठीक है, so इससे क्या होगा, what will happen with the effective length of the channel, what will happen with the effective length, let me open that particular document. Okay, ये मैंने कल बताया था इसमें से, yes. Okay, can you see these two diagrams? Yes, Hello? ma'am. Okay, Yes, कल ma'am. हम लोग ने, हाँ, कल हम लोग ने ये डिस्कस किया था कि see now here what is, this is VD is equal to VDS VD sat, that means this is edge of saturation. Okay, मतलब अभी इसके बाद अगर तुम लोग VD को बढ़ाओगे, okay, that means it will enter deep into saturation region. Okay, so now here what is happening, here you can say the channel length, now it is exact cut to cut channel length है यहाँ पे, जो जो L था, okay, L is the channel length. So now here complete L is there, it is available at this point. So you can say at the edge of saturation you will have the complete channel length L available. But see the next figure, that is figure C. यहाँ पे क्या हो रहा है, now if you increase VD greater than VD set, मतलब VD set से भी तुम लोग आगे increase कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, so जितना increase करोगे, what will happen with the pinch of point, you can see here it will shift towards left, that is towards source. और pinch of point अगर shift हो रहा है, तो pinch of point shift हो रहा है, मतलब can I say that effective channel length is reduced here? यस मैम. ओके, ये सीधा सीधा है, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल तुम लोग को दिख रहा है यहाँ पे कि अगर पिंच ऑफ पॉइंट शिफ्ट हो रहा है मतलब चैनल कम हो गया, पहले चैनल इतना बड़ा था, ओके, अभी कम हो गया. ओके, नाउ इट्स लेंथ हैज रिड्यूस्ड, सो दैट इज द इफेक्ट ऑन चैनल लेंथ. ओके, ये क्यों हुआ,
क्योंकि हम लोगों ने वीडी को बढ़ाया है, कहाँ पे, वीडीएस सेट से भी ज्यादा बढ़ाया, ओके, कौन से रीजन में, सैचुरेशन रीजन में, ओके, ये सब कुछ जो भी हो रहा है सैचुरेशन रीजन में हो रहा है, ओके. So now here you have understood that if you increase VD greater than VD set, then what will happen, channel length will reduce, मतलब L कम हो रहा है, okay, L is reducing. Now see equation 3.29, okay, ये equation देखो 3.29. Can I say ये जो equation है, it is the saturation drain current equation, yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so this is saturation drain current. So saturation drain current का equation तुम लोग को already पता है, you have written that equation which is mu n C naught x by 2 into W upon L होता है into VGS minus VT naught the whole square. अभी यहाँ पे L मतलब हम लोग L dash लेंगे, L dash is actually called as the effective length. Effective मतलब actual length कितना है वो. So can I say this L dash will be now reduced than L? L was the original length. Yeah, ma'am. Yes. So मतलब क्या, जो यहाँ पे जो पहले L था, now that L has been replaced by L dash, now L dash is the reduced length, okay, और ये L reduced क्यों हुआ, because of the channel का जो channel का length है वो modulate हुआ है by the application of VDS in saturation region, okay. तो VDS increase करने की वजह से channel length reduce हुआ. Now here from this equation, if length is reducing, if channel length is reducing, what will happen with drain current? इक्वेशन से बताओ तुम लोग, ओके. ये इक्वेशन है, इक्वेशन में बाकी सब अज्यूम करो कि कांस्टेंट है एंड एल डैश रिड्यूस हो रहा है, करंट कम हो जाएगा, Increase आईडी होगा. सेट करंट कम होगा या इंक्रीज होगा, जस्ट Increase होगा. इंक्रीज होगा, सॉरी. यस यस, इट विल इंक्रीज, इट विल इंक्रीज, क्योंकि एल डैश इज इन डिनोमिनेटर, ठीक है. तो एल डैश तुम लोग अगर रिड्यूस कर रहे हो, मतलब अगर वो रिड्यूस हो रहा है, मतलब उसका इफेक्ट क्या होगा, ड्रेन करंट विल इंक्रीज. So now have you got your answer that why there is an increase in drain current, slight increase in drain current in the saturation region? कल जो मैंने characteristics बताया था MOSFET का, उसमें पता है नॉर्मली कांस्टेंट होना चाहिए, ड्रेन करंट शुड बी कांस्टेंट, मतलब पैरेलल होना चाहिए एग्जैक्टली विथ VDS, but it is not so, okay. What is happening, if you are increasing VDS, there is a slight increase in drain current also. So वो क्यों होता है, उसका रीजन अभी यहाँ पे हम लोगों ने देखा. So is it clear? यस मैम. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, ठीक है. सो ये जो अभी हम लोगों ने स्टडी किया, इसको ही चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन बोलते हैं, ओके. सो दैट इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन. एंड इसका इफेक्ट क्या हो रहा है कि ड्रेन करंट इंक्रीज होता है. मैम कैन यू स्क्रॉल अप वंस? ओके, ठीक है, ओके. सो तुम लोग अभी चैनल, जस्ट राइट डाउन चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट लिखो, सिर्फ राइट डाउन चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन. फर्स्ट इफेक्ट इज चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन. राइट डाउन, उसमें एक स्टेटमेंट लिखो अभी. When MOSFET is operating in a saturation region, when MOSFET is operating in a saturation region, when MOSFET is operating in a saturation region, effective channel length reduces with increase in VDS. Effective channel length reduces with increase in VDS. Effective channel length reduces with increase in VDS. This is called as channel length modulation. This is called as channel length modulation. This is called as channel length modulation. Now write down this current equation. ID sat का equation लिखो, saturation current equation. That is equation 3.29. All of you write down this equation.
write down id set का equation ये वाला, and then write down as L dash reduces, L dash मतलब effective channel length, write down L dash is effective channel length. So because of channel length modulation, L dash reduces, hence ID set increases. Write down this. As L dash reduces, ID set increases. हाँ. Now next write down equation 3.30. Okay, now what is equation 3.30? ID is equal to ID dash into 1 plus lambda VDS. Write down this equation. ID is equal to ID dash into 1 plus lambda VDS. Now here, what is ID dash? ID dash is nothing but the equation for saturation drain current, saturated drain current, that is mu n C naught x by 2 into W by L into VGS minus VT whole square. Okay, so that is ID dash का equation. So यहाँ पे you can read this. ID dash the current expression derived earlier. मतलब जो तुम लोग को current का equation पता है drain current का, that is nothing but your ID dash. Okay, but when channel length modulation occurs, okay, when there is a channel length modulation in picture, then the drain current will be different than this ID dash. Okay, you can say ID dash is a current when there is no channel length modulation effect. Write down ID dash is current when channel length modulation effect is not there or it is ignored. ID dash is drain current when channel length modulation effect is ignored. एक तो तुम लोग इसको इग्नोर कर रहे हो इफेक्ट को, या तो तुम लोग, या चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इज नॉट देयर. Okay, so that is ID dash. Okay, now write down. So ID is equal to ID dash into 1 plus lambda VDS. That means if channel length modulation is there, then ID will not be ID dash. Okay, so it will be some different ID. What it will be? So that equation is given by 3.30. So write down this equation. ID is equal to ID dash into 1 plus lambda VDS. Now here, so ID dash तुम लोग को पता चल गया क्या है. ID dash is without considering channel length modulation effect. Then what is ID? ID is the drain current by considering channel length modulation, or drain current calculated by taking into account the channel length modulation effect. Okay, and then there is one parameter that is called as lambda. So here, what is lambda? Write down lambda is called as the channel length modulation parameter. Write down lambda is called as channel length modulation parameter. Hello? Okay. So have you written? What is lambda? What is lambda? Channel length modulation effect. Parameter. Okay, write down Parameter. properly. हाँ, क्योंकि ये आगे जाके बार बार आएगा. ठीक है, so this is very important effect, और ये इसका ये पैरामीटर भी तुम लोग को भी याद होना चाहिए. So lambda is called as channel length modulation parameter. Okay, हो गया. So this was your first effect, channel length modulation. Okay, तो इसका क्या होता है वो तो हम लोगों ने देखा. Now write down second effect. We are studying short channel effects. Okay, हम लोग short channel effects study कर रहे हैं. Now write down second, that is velocity saturation. Velocity saturation, second effect. Velocity saturation. Okay, now we have seen equation 3.23. 3.23.
Okay, so now what is velocity saturation effect? So we will see here. Okay, can you see this graph ID versus VDS curve, that is figure 3.18? सबको दिख Yes, रहा है? ma'am. Okay, so अभी इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है अपने को. Okay, so here you can observe three graph. So ID versus VDS मतलब ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है? Drain. Which character? Drain. Yes. Okay, it is drain characteristics क्योंकि drain current versus drain voltage. Okay, so drain characteristics यहाँ पे plot की है. Now it has been plotted for two devices. One is ये ऊपर वाला जो है grey color, that is for long channel device, और जो dark ये जो black है black curve, that is for short channel device. Okay, long channel and short channel. So can you find any difference over there? कुछ difference दिख रहा है दोनों में भी? Hello, can you find any? Saturation level में हाँ, difference है. yes, yes, saturation में difference आ रहा है. क्या difference आ रहा है? Now see here. Short channel का saturation मतलब जल्दी आ जाता है, and Yes, for long channel it right, is late. right. So you can say the short channel device will enter into the saturation earlier than the long channel, right? Okay, long channel का ये देखो ये point पे. So what is this point actually? This point is called as VGS minus VT. Okay, तो तुम लोग को पता है VGS minus VT. VGS minus VT is actually it is called as a overdrive voltage. ये तुम लोगों ने कहीं पे लिखा रहेगा. Okay, if you have not written, please write it down. Okay, so this VGS minus VT is called as a overdrive voltage. So long channel device, okay, long channel device में क्या हो रहा है? If you increase VDS, okay, we will start from zero. So zero से हम लोग VDS को increase कर रहे हैं in a positive direction. So जैसे जैसे हम लोग increase कर रहे हैं, see the long channel का curve, ये वाला gray color का. So here you can see there is a linear increase in drain current, right? जैसे जैसे VDS increase हो रहा है, drain current increasing linearly. So this region, or you can say before VGS minus VT, जो भी ये region है, that region is actually called as a linear region, okay? Linear region of operation of MOSFET. तो ये जो रीजन है उसको लीनियर रीजन बोलते हैं. क्यों लीनियर बोल रहे हैं? क्योंकि ड्रेन करंट इज वेरिंग लीनियरली विद VDS. ओके, तो ये कहाँ तक होगा? VGS minus VT तक. आफ्टर VGS minus VT what will happen? Now current will not increase linearly with VDS. Instead now it will try to saturate. Okay, अभी वो saturate होना चालू करेगा. So saturation में एक्चुअली एक्सपेक्टेड क्या है कि इट शुड रिमेन कांस्टेंट. ओके, पूरा कांस्टेंट होना चाहिए. मतलब वी शुड गेट द स्ट्रेट लाइन, मतलब पैरेलल लाइन मिलना चाहिए. बट अगेन यू विल नॉट गेट द पैरेलल लाइन बिकॉज देयर इज अ चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन. तो वो हम लोगों ने अभी जस्ट पहले स्टडी किया. सो नाउ वी विल नॉट टॉक दैट पार्ट अगेन. मेन थिंग इज हियर द लॉन्ग चैनल डिवाइस is giving you the linear variation of drain current versus VGS minus VT before this, that is in linear region. But if you compare that with a short channel device, what is happening over here? In short channel device, तुम लोग ये देख सकते हो यहाँ पे कि as you increase VDS, तो ये point जो है ये this point, that is VDS set, यहाँ पे लिखा है VDS set. तो VDS set तक ही that current, you can say it is that ID current is varying linearly. Okay, and after VDS set the drain current is saturating. Okay, तो ये क्यों हुआ? मतलब why this short channel devices are entering into the saturation region, okay, earlier than long channel. So इसका ये है, the reason is हम लोग ने assume क्या किया था? What was the assumption that the C, now this statement you have to read. Okay, so the velocity of the carrier, okay, carrier मतलब यहाँ पे suppose electron, okay, so the velocity of carrier is proportional to the electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड को वेलोसिटी ऑफ कैरियर जो है दैट इज प्रोपोर्शनल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ फील्ड. ओके, इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यू ऑफ फील्ड मतलब फील्ड का कितना वैल्यू है दैट विल नॉट मैटर, बट इट इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. इन अदर वर्ड्स द कैरियर मोबिलिटी इज अ कांस्टेंट. मतलब हम लोग ने अजम्पशन किया था कि जो कैरियर मोबिलिटी है, मोबिलिटी मतलब इट इज डिनोटेड बाय म्यू एन. अगर म्यू एन बोल रहे हो मीन्स इट इज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यू पी दैट इज मोबिलिटी ऑफ होल्स. तो हम लोग अजम्पशन करते हैं कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स जो भी उसका वैल्यू है दैट विल रिमेन कांस्टेंट. तुम लोग कितना भी वोल्टेज अप्लाई करो, तुम लोग इवन इफ यू इंक्रीज VDS और इवन इफ यू आर इन डिक्रीजिंग द चैनल लेंथ, तो इट विल रिमेन कांस्टेंट. ये अपना अजम्पशन था. बट this assumptions is okay with long channel device. Okay, तो ये अगर तुम लोग assume कर रहे हो then that is okay, that is there is no issue with long channel device. But whenever you are operating on a short channel device, okay, जैसे ही तुम लोग short channel पे आते हो then this will not hold true. Okay,
now the carrier mobility will not remain constant with electric field. मतलब short channel device में you can compare now. Simple question, you know the electric field formula, okay? Electric field का तुम लोग को formula पता है. Now the question is, if I want to compare the field strength, okay, field का strength अगर मुझे compare करना है between two, that is long channel and short channel, तो कौन से device में field will be very high? Tell me. थोड़ा Short लॉन्ग channel. चैनल में कौन से डिवाइस में फील्ड ज्यादा होगा? फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक Long फील्ड, channel. लॉन्ग और शॉर्ट? ठीक से सोचो. उसके लिए तुम लोग को यू शुड नो द फॉर्मूला. मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है. ओके, सी इसको गेस नहीं करना है, ये दिस इज नॉट, तुम लोग के पास लॉजिकल आंसर होना चाहिए. यस बोलो. Oh yes, ma'am. Short channel because the area शॉर्ट of the चैनल short channel will be smaller compared to the यस long channel. यस यस राइट. ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड? ई V by Voltage L. applied upon वी area. बाय एल. राइट राइट, याद आया, वी बाय एल. हाँ, तो अभी सिंपल है. शॉर्ट चैनल है मतलब एल का वैल्यू बहुत छोटा रहेगा, ओके, एज कंपेयर टू लॉन्ग चैनल डिवाइस. इसका मतलब है जहां अगर एल कम है दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज ना, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी दैट मच स्ट्रॉन्गर. जितना एल कम उतना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा रहेगा. ओके, सो दैट मींस तुम लोग को भी ये पता चला कि अगर तुम लोग शॉर्ट चैनल पे ऑपरेट कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वेरी हाई. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वेरी हाई एज कंपेयर टू लॉन्ग चैनल. सो बिकॉज ऑफ दिस कैरियर मोबिलिटी एक पॉइंट आएगा. नाउ इफ यू ट्राई टू इंक्रीज वीडीएस, ओके, एक सर्टन पॉइंट के बाद you if you are expecting that mobility will remain constant और इलेक्ट्रॉन ने उसी मोबिलिटी के साथ यहाँ से वहां पे ड्रिफ्ट होना चाहिए, then that will not happen. Okay, so that will not happen, and then what will happen finally, velocity of carrier will saturate. Okay, carrier मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी था, मतलब अगर लो वोल्टेज पे वो ज्यादा वेलोसिटी से जा रहा था तो अभी हाई वोल्टेज पे इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट कैनॉट मेंटेन दैट मोबिलिटी. So that is the effect on that effect is called as a velocity saturation. And so velocity saturation finally it tends to saturate due to scattering effects. Okay, scattering मतलब क्या? collisions suffered by the carriers. अभी velocity saturation क्यों होता है? क्योंकि इफ इट इज वेरी हाई फील्ड, ओके, तुम लोग को पता है शॉर्ट चैनल में इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत अगर ज्यादा है दैट मीन्स there will be multiple electrons, they will be try to travel from one point to another. At the same time there will be scattering, scatter होंगे, वो scatter होंगे तो collisions के chances ज्यादा है. और ज्यादा collision, जितना ज्यादा collision होगा उतना उनका velocity पे restrictions आएगा. उनका velocity जो है finally that will be reduced. Okay, so ये पूरा effect आएगा कहाँ पे? when you are dealing with a short channel device, and this particular effect is called as a velocity saturation. Is it clear, this point? Yes, ma'am. ओके, राइट डाउन थर्ड इफेक्ट. ओके, एक काम करो, वेलोसिटी सैचुरेशन लिखो एंड जस्ट ड्रॉ दिस ग्राफ. ये ग्राफ ड्रॉ करो. Completed this graph? Yes, ma'am. Yeah. Okay. Next, write down the third effect, DIBL and subthreshold conduction. एक मिनट पहले ना, जस्ट राइट डाउन ओनली DIBL, सब थ्रेशोल्ड मत लिखो पहले. राइट डाउन DIBL एंड राइट डाउन फुल फॉर्म. DIBL का फुल फॉर्म लिखो. इट इज ड्रेन इंड्यूस्ड, डी मतलब ड्रेन, ड्रेन इंड्यूस्ड, ड्रेन इंड्यूस्ड बैरियर लोअरिंग
Hello, ma'am. हाँ, Ma'am, can you repeat it? DIBL. D is write down drain, drain induced. I is induced. Drain induced barrier. B is barrier. पोटेंशियल बैरियर जो बोलते हैं उसका वो वाला बैरियर. Drain induced barrier lowering. L is lowering. LOWERING. Okay, now all of you draw this diagram. Figure A, ये वाला. Completed diagram. No, ma'am. ये वाला ए, जो डायग्राम ए है वो ड्रॉ करना है. Once completed, let me know.
completed? Yes, sir. Yeah. Okay. Okay. So see now what you have drawn over here. बाकी तो तुम लोग को पता है सोर्स, यहाँ पे ये सोर्स है, दिस इज ड्रेन, ओके, ऊपर गेट है, ये वाला गेट का जो वोल्टेज दैट इज VGS ग्रेटर देन VT, ग्रेटर देन VT है मतलब इट इज ऑन, ओके, मॉसफेट इज ऑन, एंड देन यहाँ पे जो VS विल बी जीरो, सोर्स वोल्टेज इज एट जीरो, VDS विल बी पॉजिटिव वोल्टेज, ओके, इट विल बी सम पॉजिटिव वोल्टेज। अभी यहाँ पे ये वाला जो रीजन है, ओके, यहाँ पे मेन थिंग इज तुम लोग को सब रीजन समझ में आना चाहिए। यहाँ पे कैन यू ऑब्जर्व दिस जंक्शन डिप्लीशन रीजन N प्लस, मतलब सोर्स का जो N प्लस है उसके नीचे ये जो रीजन दिख रहा है, दिस इज द डिप्लीशन रीजन ऑफ, यू कैन से सोर्स की वजह से जो यहाँ पे डिप्लीशन रीजन है दैट इज द जंक्शन डिप्लीशन रीजन ओवर हियर बिकॉज ऑफ सोर्स, ओके। क्यों? यहाँ पे सोर्स इज N प्लस, सोर्स के यहाँ पे नीचे कौन है, ये P सबस्ट्रेट है, ये पूरा P सबस्ट्रेट है, तो सोर्स इज N प्लस, सबस्ट्रेट इज P, दैट मीन्स यहाँ पे एक PN जंक्शन फॉर्म हुआ है, ओके, देयर इज अ PN जंक्शन, और जहाँ पे भी PN जंक्शन होता है तो जंक्शन के बाजू में, ओके, सराउंडेड, यू कैन से एट द बाउंड्री ऑफ जंक्शन देयर इज अ डिप्लीशन रीजन, ओके, ये वो वाला डिप्लीशन रीजन है। सो ये जो पार्ट है, दिस डिप्लीशन रीजन इज कॉल्ड एज अ सोर्स इंड्यूस्ड डिप्लीशन रीजन, ओके, सोर्स की वजह से जो डिप्लीशन रीजन है वो, इसका जो लेंथ है, ओके, कितना डिप्लीशन, व्हाट इज द विड्थ ऑफ अ डिप्लीशन, दैट इज गिवन बाय XDS। XD मतलब डिप्लीशन रीजन का विड्थ, S मतलब सोर्स के साइड का डिप्लीशन रीजन का विड्थ, ओके, सो XDS इज सोर्स के साइड का डिप्लीशन रीजन विड्थ। सिमिलरली कम टू द ड्रेन साइड, ड्रेन साइड पे अगेन ये ड्रेन भी ड्रेन N प्लस है, यहाँ पे P सबस्ट्रेट है, तो अगेन देयर विल बी VDS पे तुम लोग पॉजिटिव दे रहे हो, मतलब दिस जंक्शन इज गोइंग टू बी रिवर्स बायस, जितना ज्यादा रिवर्स बायस उतना ज्यादा डिप्लीशन रीजन का विड्थ, ओके। एंड तुम लोग को पता है, तुम लोग VDS इंक्रीज करते हो, VDS इंक्रीज करते हो मतलब तुम लोग ड्रेन पे पॉजिटिव पोटेंशियल देने वाले हो एंड उसको तुम लोग इंक्रीज करने वाले हो, सो जितना इंक्रीज करोगे उतना at the same time what will happen with this depletion region width, this will also increase, okay, so XDD, now XDD is what, it is the depletion region width because of drain, okay, or you can say drain induced जो depletion region है उसका width is given by XDD। so is this 2 points clear? Yes, ma'am. ओके, नाउ इसका ये भी समझा, विच वन इज ग्रेटर, XDD ज्यादा है या XDS, विच वन इज Main ग्रेटर? wala. XDD। ओके, इज इट क्लियर व्हाई XDD इज ग्रेटर देन XDS? Yes, ma'am. ओके, ठीक है, ये भी सी, ये सब पॉइंट समझ में आना चाहिए, क्यों व्हाई XDD इज ग्रेटर देन XDS, ओके, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ ये वाला जो एरिया तुम लोग को दिख रहा है ग्रे कलर का ट्रेपेजॉइड, यू कैन, इफ यू कैन सी दिस ट्रेपेजॉइड ग्रे कलर का, ओके, सो व्हाट इज दिस रीजन? दिस रीजन इज कॉल्ड एज एक्चुअली गेट इंड्यूस्ड बल्क रीजन, ओके। जैसे हम लोगों ने देखा कि डिप्लीशन, सॉरी, ड्रेन की वजह से एक डिप्लीशन रीजन है, उसके बाद एक सोर्स की वजह से एक डिप्लीशन रीजन है, तो सिमिलरली गेट की वजह से भी, मतलब बिकॉज ऑफ गेट देयर इज अ डिप्लीशन रीजन, ओके। गेट एंड बल्क, ये गेट एंड बल्क ये दोनों का इंटरेक्शन की वजह से देयर इज अ डिप्लीशन रीजन विच इज शोन हियर बाय अ ग्रे कलर, ग्रे शेड, इफ यू कैन सी दिस, एंड इसका जो शेप है ये तुम लोग को यहाँ पे जो दिख रहा है वो ट्रेपेजॉइड शेप है, ओके। नाउ यहाँ पे जस्ट ये वाला जो स्क्वायर है जो यहाँ पे, इफ यू कैन सी दिस स्क्वायर इज zoomed over here, तो तुम लोग को अभी मतलब यू कैन से यू विल कॉन्सेंट्रेट ऑन द ड्रेन पार्ट, ओके, ड्रेन पार्ट जो है यहाँ पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करने वाले। सो हियर XDD तुम लोग को पता है, व्हाट इज XJ, व्हाट इज XJ? Junction depth. यस, तुम लोग को मैंने पहले ही बताया था, ये XJ जो है वो जंक्शन डेप्थ है, मतलब ये जो ड्रेन है यहाँ से चालू हुआ कहाँ तक है, यहाँ तक है, सो ये जो डेप्थ रहेगा दैट इज XJ, ओके। सो यहाँ पे ये XJ तुम लोग इसको तुम लोग एक सर्कल, क्वार्टर सर्कल अज्यूम कर सकते हो, सो रेडियस इज दैट रेडियस विल बी XJ, ओके। सो दैट दिस डिस्टेंस इज XJ, फिर XJ के बाद जो डिस्टेंस आता है दैट इज XDD, ओके। देन ये जो है दिस पार्ट, ये वाला, व्हाट इज दिस, इज कॉल्ड एज द डेल्टा LD, एंड सिमिलरली सेम चीज सोर्स साइड पे भी होगा, सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज डेल्टा LS।
डेल्टा एल एस एंड डेल्टा एल डी एक्चुअली क्या होता है, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि वी नो दैट द टोटल चैनल लेंथ जो एल होता है, एल हम लोग एक्चुअली अज्यूम कहाँ से कहाँ करते हैं, ये एन प्लस से लेके ये एन प्लस, ओके, मतलब द एक्चुअल एल इज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, सो दिस इज अ फिजिकल एल जो होता है वो ये है, फिजिकल चैनल लेंथ इज दिस मच। बट जब तुम लोग मॉस्फेट को ऑपरेट करते हो, ओके, व्हेन दैट मॉस्फेट इज ऑपरेटेड अंडर सम बायस मतलब तुम लोगों ने VGS दिया, VDS दिया, उसका कुछ वैल्यू रहेगा, अकॉर्डिंग टू दोज वैल्यूज देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ depletion region, okay, and you know that this value of VDS is going to change this XDD, तो ये विड्थ वगैरह जो है डिप्लीशन रीजन का विड्थ है वो XDS तो चेंज नहीं होगा as soon as so long as this VS is 0, but this VDS जैसे जैसे VDS चेंज होगा XDD will change। तो यहाँ पे एक्चुअल लेंथ L था, फिजिकल लेंथ इज L, बट इफ यू सी हियर केयरफुली यू विल फाइंड कि ये टोटल L में से इतना पार्ट, मतलब ये जो डेल्टा एल एस है, कैन आई से दिस डेल्टा एल एस इज नथिंग बट द जंक्शन डिप्लीशन रीजन बिकॉज ऑफ सोर्स, इतना पार्ट समझ रहे क्या तुम लोग को, दिख रहा है क्या ये वाला, Yes, ma'am. Yeah. मतलब ये जो डेल्टा एल एस है ये दिस इज नथिंग बट द जंक्शन डिप्लीशन रीजन, मतलब ये इधर गया सपोज, तो इतना पार्ट ये उसका ही है। सिमिलरली जो यहाँ पे हुआ वही यहाँ पे भी होगा, सो दिस डेल्टा एल डी इज व्हाट, इट इज नथिंग बट द जंक्शन डिप्लीशन रीजन बिकॉज ऑफ दिस ड्रेन टू सोर्स, सॉरी बिकॉज ऑफ दिस ड्रेन, सो दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा एल डी। इसका मतलब अगर मुझे एक्चुअल चैनल लेंथ, इफेक्टिव चैनल लेंथ कैलकुलेट करना है, देन व्हाट हैव टू डू, क्या करना पड़ेगा, इफेक्टिव चैनल लेंथ अगर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, ये जो, हाँ राइट, ये जो कैपिटल एल है जो एक्चुअल फिजिकल लेंथ है, ओके, इट इज अ फिजिकल लेंथ, तो फिजिकल लेंथ में से ये दोनों डेल्टा एल एस एंड डेल्टा एल डी आई हैव टू सब्ट्रैक्ट, देन आई विल गेट द एक्टिव और यू कैन से एक्चुअल और इफेक्टिव चैनल लेंथ, ओके। तो ये एक पॉइंट इसमें से तुम लोग को समझना है। नेक्स्ट पॉइंट इज नाउ, अभी जो हम लोग इफेक्ट देखने वाले दैट इज कॉल्ड एज द ड्रेन इंड्यूस्ड DIBL, दैट इज ड्रेन इंड्यूस्ड बैरियर लोअरिंग। ये नाम में ये जो DIBL है इससे तुम लोग को क्या समझ में आता है, ड्रेन इंड्यूस्ड बैरियर लोअरिंग मतलब क्या होने वाला है, ड्रेन इंड्यूस्ड मतलब ड्रेन इंड्यूस करेगा, ओके, ड्रेन कुछ इंड्यूस करने वाला है, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, बैरियर लोअरिंग मतलब ये जो बैरियर है, ओके, कैन आई से दिस डिप्लीशन रीजन इज एक्टिंग एज अ बैरियर ओवर हियर, ये पूरा डिप्लीशन रीजन, और ये जो गेट इंड्यूस्ड बल्क रीजन है, बल्क डिप्लीशन रीजन ये वाला बीच का, सो दिस इज एक्टिंग एज अ बैरियर। Yes, ma'am. Oh yes. ओके, अगर तुम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है तो गो टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डायोड, ओके, डायोड पे जाओ। सबसे पहले हम लोगों ने डायोड में क्या देखा था, डायोड जब फ्रेशली प्रिपेयर होता है, राइट, तो सबसे पहले अगर डायोड को तुम लोगों ने कुछ भी बायस नहीं किया है, देन व्हाट इज देयर इनसाइड द डायोड, व्हाट यू कैन सी, अनबायस्ड डायोड में क्या क्या होता है, जल्दी बोलो। Barrier potential. यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी, फ्रेशली प्रिपेयर्ड डायोड बना के तुम लोग के पास आ गया, ओके, तो और तुम लोगों ने उसको कुछ भी सप्लाई नहीं दिया, ओके, यू हैवंट अप्लाइड एनी वोल्टेज ओवर देयर, then what is there inside the diode, there will be a potential barrier present at the junction, okay, और ये जो potential barrier होता है, can I say this is related with the depletion region? Yes. Yes. ma'am. Now the simple question, if I am saying that depletion region width जितना ज्यादा रहेगा उतना potential barrier will be more, is it okay? Yes. अगर ये स्टेटमेंट किसी को नहीं समझा तो प्लीज टेल मी नाउ, क्योंकि इस पे ही पूरा ये डिपेंडेंट है ये कॉन्सेप्ट। तो इज इट क्लियर दिस पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग, प्लीज लिसन केयरफुली। आई एम सेइंग more the depletion region area, more will be the potential barrier. Is this statement clear, all of you? कोई है जिसको नहीं समझ रहा है ये स्टेटमेंट? अगर नहीं समझ रहा है तो सिंपल सिर्फ डायोड को याद करो। डायोड में याद करो, हम लोगों ने जब डायोड को रिवर्स बायस किया था, ओके, अभी ट्राई टू रिकलेक्ट, डायोड को जब रिवर्स बायस किया था, what had happened with the depletion region? Increases. Depletion region increase हुआ था, right? So can I say at that time depletion region increase हुआ मतलब barrier has got increased? हाँ मैम। हाँ, तो ये याद रखो, मतलब एक चीज याद रखो, अगर डिप्लीशन रीजन इंक्रीज हो रहा है मतलब बैरियर इंक्रीज हो रहा है, ओके, ठीक है। सो
अभी मतलब डिप्लीशन रीजन एंड बैरियर का डायरेक्ट कनेक्शन है. डिप्लीशन रीजन ज्यादा, बैरियर ज्यादा. प्लीज राइट डाउन दिस पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज राइट डाउन. Again, this can be asked in Viva. Write down. Depletion region is directly proportional to the barrier, amount of barrier, you can say. Depletion region width you can write if you want. Region नहीं समझ रहे हो तो डिप्लेशन रीजन, जितना ज्यादा डिप्लेशन रीजन का विड्थ उतना ज्यादा बैरियर. कंप्लीटेड. यस मैम. ओके, अभी दूसरा स्टेटमेंट चेक करो मैं क्या बोल रही हूँ. प्लीज लिसन इट केयरफुली. हाँ, तो ये तो तुम लोग को पता है, ये जो ट्रेपेजॉइड दिख रहा है इसमें से ये इधर का पार्ट गया जंक्शन डिप्लीशन रीजन, मतलब ड्रेन के वजह से था. इधर का ये जो स्मॉल पार्ट था दैट इज बिकॉज ऑफ सोर्स एंड बल्क का डिप्लीशन रीजन. अभी फिर ये छोड़ के जो बीच में बचा, व्हाट इज दैट पार्ट? दैट इज कॉल्ड एज द गेट इंड्यूस्ड बल्क डिप्लीशन रीजन. ओके, तो ये जो बीच में तुम लोग ने अगर ठीक से इतना पार्ट देखा तो ये जो पार्ट है दैट इज गेट इंड्यूस्ड बल्क डिप्लीशन रीजन. नाउ you have to concentrate on this particular depletion region. अभी एक सिंपल क्वेश्चन है. You have two devices, एक है long channel device and एक है short channel device, right? So now the question is, in which device this gate induced bulk depletion region will be less? ये जो इतना रीजन है, ये रीजन कौन से इसमें छोटा रहेगा? मीन्स where it will be less? Will it be in long channel or will it be in short channel? Gate induced bulk depletion region will be less in which device? Is it short channel or is it long channel? हाँ बोलो, बाकी लोग कोई बोल ही नहीं रहे. रोल नंबर 4, दुबे, अविनाश. I think some more in the long this channel. Yes, right. सिंपल है, इसमें कुछ इतना डिफिकल्ट है क्या? सिंपल है ना. लॉन्ग चैनल है मतलब उसका ये चैनल ज्यादा रहेगा, राइट? मतलब ये Yes, जो ma'am. एरिया रहेगा सिंपल है रे बाबा. शॉर्ट चैनल है मतलब ये एरिया कम रहेगा, राइट? लॉन्ग चैनल है मतलब ये एरिया ज्यादा रहेगा, राइट? Yes, ma'am. ओके, अभी नेक्स्ट चीज, ठीक है, मतलब ये क्लियर है. राइट डाउन दिस आल्सो, नोट डाउन दिस पॉइंट. इन लॉन्ग चैनल डिवाइस गेट इंड्यूस्ड बल्क डिप्लीशन रीजन विल बी मोर. ओके, ये जो रीजन है दैट विल बी मोर एज कंपेयर टू द शॉर्ट चैनल डिवाइस. Yes, अभी ma'am. नाउ नेक्स्ट. हाँ, ये क्लियर है ना पॉइंट? हाँ, नोट इट डाउन प्लीज. Yes, ma'am. नेक्स्ट, अभी तुम लोग को गेट इंड्यूस बल्क डिप्लीशन रीजन मतलब ये जो डिप्लीशन रीजन है कहाँ पे ज्यादा रहेगा कहाँ पे कम, वो पता चल गया. नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो मुझे जो बैरियर रहेगा, ओके, सो कैन आई से बैरियर विल बी लो इन केस ऑफ शॉर्ट चैनल एज कंपेयर टू लॉन्ग चैनल? कैन आई से दिस? अगर डिप्लीशन रीजन कम है, ओके, इफ डिप्लीशन रीजन इज लेस इन शॉर्ट चैनल दैट मींस बैरियर इज लेस इन शॉर्ट चैनल. यस, Yes, ma'am. यस मैम. राइट डाउन दिस स्टेटमेंट आल्सो. अगर डिप्लीशन रीजन कम है मतलब बैरियर भी कम है. लिखा ये कंप्लीटेड दिस. हैव यू नोटेड डाउन दिस पॉइंट? Yes, ma'am. और एक पॉइंट अभी 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 एक सिंपल क्वेश्चन. इफ आई एम सेइंग दैट आई एम इंक्रीजिंग दिस VDS, ओके, VDS में इंक्रीज कर दियो, ओके, सो इफ आई एम इंक्रीजिंग VDS कैन आई से दिस XDD विल इंक्रीज फर्दर? Yes, ma'am. ओके, अभी थोड़ा सोचो, अगर ये XDD इंक्रीज हुआ तो कैन आई से ये जो गेट इंड्यूस्ड बल्क डिप्लीशन है दैट विल रिड्यूस फर्दर? क्योंकि ये Yes, इंक्रीज हो रहा है ना, ये पार्ट इंक्रीज होगा तो ये गेट इंड्यूस्ड जो बल्क डिप्लीशन है दैट विल. Yes, ma'am. Okay, write down this point also. If you increase VDS or as VDS is increased, gate induced bulk depletion region will reduce. Gate induced bulk depletion region will reduce. मतलब जितना VDS तुम लोग इंक्रीज करोगे XDD इंक्रीज हो रहा है, डिप्लीशन विड्थ ऑफ ड्रेन इज इंक्रीजिंग एंड उसके वजह से जो गेट इंड्यूस्ड बल्क डिप्लीशन रीजन है वो कम हो रहा है.
सो कैन आई से दिस गेट इंड्यूस्ड बल्क डिप्लीशन रीजन अगर कम हो रहा है मतलब बैरियर लोअर हो रहा है, बैरियर कम हो रहा है, कैन आई से दिस? Yes. Right Yes, down, ma'am. right? Note down now this point. Now as gate induced bulk depletion region reduces, hence barrier reduces. Hence barrier reduces. Hence barrier reduces. Now can you justify the effect DIBL over here? Drain induced barrier lowering. Yes. सबको समझ में आ रहा है? ड्रेन की वजह से क्या हुआ, बैरियर जो है वो रिड्यूस हुआ, दैट इज कॉल्ड एज ड्रेन इंड्यूस्ड बैरियर लोअरिंग. समझा ये? क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बोलो बोलो, कोई बोल रहे हैं? कुछ इश्यू है? हो रहा है तो क्या? गेट VDS इंक्रीज हो रहा है, VDS इंक्रीज हो रहा है. हाँ हाँ XDD बोलो. भी इंक्रीज हो रहा है. VDS इंक्रीज हो रहा है तो XDD क्या होगा?